Good evening, my dear friends, and Jai Hind to all. Today we are going to make a new video on SSB preparation. Basically, this is the topic of the video. Apart from that, we were absent for a lot of days, like even for a month we were being absent. So definitely, I heartily apologize for that. So no issues. The video series will be continued from today onwards. So definitely, this video is again going to be a bilingual language. मीन्स ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। कुछ ऐसे हैं जो 12th क्लास में हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे एसएसबी की प्रिपरेशन स्क्रैच से स्टार्ट करें। क्या रिटर्न के साथ भी एसएसबी प्रिपरेशन की जा सकती है? सर्टेन क्वालिटीज दैट इज कॉल्ड OLQs, that is called the officer like qualities. We are going to cover all these things in this video, that from scratch how to prepare for the SSB. Cutting short the duration of the video, I have already written it down how to prepare for the SSB. Let's understand the step one by one. So firstly, I have already written it that SSB preparation from scratch means जो बच्चे अगर शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, means if you are 12th appearing candidate, or if you want to prepare for the SSB with your written, so you can also apply these methods. If you are a repeater candidate or if you are a like fresher candidate, you can also apply some methods that I have already written down. That firstly, the full form of SSB, you know, that Services Selection Board. If you have the better idea, or if you have like curiosity, you definitely would have searched about the SSB so many things. For going to the defense, you must have the curiosity. So if there are some process that we need to follow, the 5-day interview process, we all know that SSB process is 5-day interview process for selecting officer candidate for tri services. Means it includes the Army, Navy and Air Force. So if you are going to, or if you are aspiring to join any of these forces, NDA or like SSB preparation is for you. Like for different entries, the criteria is like changing. For you can go towards the Air Force from FCAT also, and there is like NDA and CDS. There are choices that you can choose any of three choices, like Army, Navy or Air Force. Definitely the boards are changed. Like for Air Force, for Navy, for Army, there are certain boards that that conducts SSB interview for different processes, like AFSB or NSB. NSB is Naval Selection Board, AFSB means Air Force Selection Board, and for SSB, that is Services Selection Board, it is for Army. And we know that selection process is same, but for the Air Force, there is a like term that is called CPSS. It is being conducted after your recommendation. So for detailed video, we can like discuss a lot for this. And Army or Navy, the selection process is same. All the things are very much same in Army and Navy boards. Now the question is that how to prepare for the interview, for SSB interview. Gentlemen, we know that for the 5-day interview, it is not only the interview. Interview is the very small part that is conducted in the SSB interview. Between the days like 2nd day or 3rd day or 4th day, it is being conducted in the SSB interview. So SSB interview, some of the candidates misinterpret that it is only for the interview. There are certain tasks that is being performed in the SSB interview. Performance, your combined performance are judged by the 3 officers. So ultimately, this is the SSB interview. Definitely, for preparing from scratch, firstly, I have written is here phase 1, the self assessment means know yourself. पहली बात तो ये है अपने आप को जानो, ठीक है। अब ये कहोगे कि यार अपने आप को तो हम सब जानते हैं, है ना। सो सबसे बड़ी भूल है ये आपकी। अगर आप इस पे जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको अपने बारे में खुद से नहीं पता होती हैं, ठीक है। दैट इज द थिंग दैट ऑफिसर्स आर लुकिंग फॉर देयर. So definitely, firstly understand the process means SSB process, Services Selection Board. ये process ही अपने आप में बहुत ज़्यादा complicated है. वैसे तो इसको clear करना बहुत ही easy है. जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर process को समझ गए तो clear करना बहुत ज़्यादा easy रहता है. अगर आप 60% means आपका process होता है, अगर process को आप समझ गए 60% काम आपका वहीं हो गया. बस क्या 40% काम रह जाता है, जो कि process में means आप कितना अच्छा अपने आप को ढालते हैं, कितना ज़्यादा proficient हैं compared to others. So definitely you have got an edge. With the other candidates, those who don't know about the process. So definitely process को जानने के लिए आप किसको फॉलो कर सकते हैं, YouTube को फॉलो कर सकते हैं definitely, और बुक्स को फॉलो कर सकते हैं. बुक्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, एक वाइट कलर की बुक आती है MK नटराजन सर की, SSB इंटरव्यू की, MK नटराजन सर की. सो ये बेस्ट सेलर वैसे भी है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं. और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस बुक को जानते ही जानते हैं. MK नटराजन सर की बुक है, SSB की बुक. So understand the process. So the second point is eligibility check. So you know very well that if you are eligible for the entry, definitely you will get chance for SSB interview. You will get invitation from the Services Selection Board. Definitely, if you have got enough idea that what type of eligibility criteria is there. Like some candidates do not aware about so many entries that are being conducted, even though they can get chance, but they are not aware enough. मतलब आपको पता ही नहीं है यार कि there are technical entries, आपके पास technical entry भी हैं,
ठीक है, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट्स जो होते हैं वो एनडीए एंट्री और सीडीएस एंट्री, इनफैक्ट एफकैट एंट्री के पीछे जाते हैं और वही मालूम होता है, लेकिन ये नहीं कहते यार सिलेक्शन रेशियो टेक्निकल एंट्री का बहुत ही लो होता है और जो एनडीए एंट्री और सीडीएस एंट्री और ये जो रिटर्न एंट्री होती हैं उसमें सिलेक्शन रेशियो हाई होता है, बट आपको एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे, कई कैंडिडेट्स वहाँ से सेलेक्ट भी होते हैं। सो डेफिनेटली यू हैव टू ऑल्सो चेक about the like eligibility if you are eligible for the TS entry or like there are certain entries, ठीक है, तो आपको मतलब नॉलेज तो होना चाहिए एटलीस्ट यार कि TS भी होता है, ठीक है, और नेवी बीटेक एंट्री भी होता है ना, और देयर आर सर्टेन एंट्रीज, मतलब ये तो 12th के बाद होता है, 10+2 के लेवल पे एंट्रीज होती हैं, बाकी एसएससी टेक होती है, जैग एंट्री होती है, कई सारी एंट्री होती हैं, आप केवल इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि यार कितनी सारी एंट्री होती हैं। सो अगर आपके पास मतलब आपको नॉलेज होगा इन सब चीज़ों के बारे में कि कितनी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे हम लोग एसएसबी इंटरव्यू का पार्ट बन सकते हैं बार बार, मीन्स यार कई लोग ऐसे होते हैं 10 अटेम्प्ट 12 अटेम्प्ट दे दिए, ठीक है, मीन्स वो केवल ग्रेजुएशन में है और उन्होंने 10 अटेम्प्ट 12 अटेम्प्ट दे दिए, आप लोग सोचते हैं यार कि एनडीए के कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन नहीं यार, उन्होंने टीएस एंट्री और लाइक नेवी बीटेक एंट्री के लिए भी अप्लाई किया होता है और कई सारी अलग अलग जैसे एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है उनके लिए भी अप्लाई किया होता है। तो डेफिनेटली इफ यू हैव मोर चांसेस, सो मतलब मोर लक टू यू दैट यू गेट सेलेक्टेड ओवर देयर, ठीक है। थर्ड थिंग योर इंट्रोस्पेक्शन, मतलब इसका पूरा जो होता है ना ब्रीफिंग यही होता है, सेल्फ असेसमेंट का इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, नो योरसेल्फ, ठीक है, अगर आप अपने आप को जानते ही नहीं है कि यार मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है यार कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है, आपकी हॉबीज, स्ट्रेंथ सॉरी हॉबीज, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब चीजें जो होती है ना ये सब होती हैं इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर। कई लोगों से पूछ लो यार कि स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो डेफिनेटली वो ऐसे बताएंगे जो यार वीकनेस है ही नहीं यार, हैंड राइटिंग मेरी बेकार है, ठीक है, वो सीधे पकड़ में आ जाती है। अगर इंटरव्यू लेगा इंटरव्यूअर तो वहाँ पे सीधे पकड़ में आ जाती है कि यार ये क्या वीकनेस बता रहा है, मतलब बेकार सी वीकनेस है, ठीक है। सो अपने आप को अपडेट करते रहो। ये कैसे इंप्रूव हो सकता है इंट्रोस्पेक्शन, ये होता है डायरी राइटिंग से इंप्रूव हो सकता है, डायरी राइटिंग, ठीक है, डायरी आप जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, जर्नल्स मेंटेन कर रहे हैं, तो ये हो सकता है ना, बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं आप इंट्रोस्पेक्शन। डेली आप लिखना चालू कर दीजिए कि यार आज मैंने क्या किया, ठीक है, डेली नहीं, स्पेशल ओकेजन पे भी लिख सकते हैं डायरी और वो चीजें, और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि हम पीपल के सामने बिहेवियर कैसे करते हैं, ठीक है। सो आपका बिहेवियर जैसे जैसे चेंज होगा, आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक है। सो ये चीज जो होती है बहुत ज्यादा मतलब इंपैक्ट करती है एसएसबी इंटरव्यू में। बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन आपका एक उसमें पार्ट भी होता है एचडी का, ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, सेल्फ डिस्क्रिप्शन का एक पार्ट होता है, वो टोटल इसके ऊपर ही बेस होता है, समझ लो, मतलब आपको ओपिनियन अपने बारे में क्या है, आपके फादर का ओपिनियन अपने बारे में क्या है। सो इंट्रोस्पेक्शन क्रिएट मच वेटेज इन द एसएसबी इंटरव्यू। सो इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इंट्रोस्पेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेकंड फेज में आता है एकेडमिक प्रिपरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो इंटरव्यू है, एसएसबी इंटरव्यू है, यहाँ पे मैंने एकेडमिक प्रिपरेशन क्यों लिख दिया, ठीक है। सो एकेडमिक प्रिपरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एसएसबी इंटरव्यू एज वेल, ठीक है। एकेडमिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको लिखने की जरूरत हो, जहाँ पे आपको याद करने की जरूरत हो, जहाँ पे आपको समझने की जरूरत हो, ठीक है। ये तो ऐसी क्वालिटी होती है एसएसबी में, जो ऐसे टास्क होते हैं जो हमारे अंदर सेल्फ डेवलप होने चाहिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बट ये जो होता है ना एकेडमिक प्रिपरेशन, ठीक है, ये हम पढ़ के ही डेवलप कर सकते हैं। इसमें पहला मैंने पॉइंट ऑफकोर्स लिखा है जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज बहुत ही वास्ट पार्ट होता है और इसमें मतलब जियो पॉलिटिक्स आती है, जियो पॉलिटिक्स आती है, ठीक है। इसमें सी आता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें आपका आता है डिफेंस नॉलेज। अब आप सोच रहे हैं डिफेंस नॉलेज में यार आप डिफेंस जा रहे हैं तो डिफेंस का नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। डिफेंस आप जो बेसिकली आप जिस विंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, बेसिकली उसके बारे में तो सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, और ऊपर ऊपर का नॉलेज आपके बारे में, मतलब वेपन्स के बारे में, आर्टिलरी के बारे में, सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप बुक्स के ले सकते हैं या फिर इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, विकीपीडिया का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। सेकंड थिंग जनरल नॉलेज में आपका मतलब आपके प्लेस के बारे में, ठीक है, आपका प्लेस जो है जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपका जो भी प्लेस है, ठीक है। बेसिकली ये तो रिटर्न के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिटर्न की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ना, तो जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका नेटिव प्लेस जो है, नेटिव प्लेस में लिख सकते हैं नेटिव प्लेस, ठीक है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और इनफैक्ट मीन्स ये चीज़ जो होती है ना, ये मेरे हिसाब से सोचा तो मैं इसमें हमेशा अपना ये आइडिया लगा रहा था कि छोटे से बड़े की ओर चलो ना। जैसे पहले तो सबसे पहले आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए, होम टाउन के बारे में पता होना चाहिए यार, जो सबसे छोटा एरिया होता है, या आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी टाउन से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि यार हमारे आसपास की समस्याएं क्या हैं, ठीक है, और हमारे आसपास में क्या चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं, क्या डिशेस पॉपुलर हैं। बेसिकली ये इंटरव्यू में पूछ लेता है, सीधे पूछ लेता है कि यार व्हाट इज द फेमस प्लेसेस यू वुड लाइक मी टू विजिट, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको खुद के प्लेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे यार वो खुद ही हंस देगा यार, खुद ही सोचेगा कि यार तुमको खुद के प्लेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो क्या ही करोगे यार, पूरा मतलब इतना बड़ा ऑफिसर बनने का कैसे तुमको जिम्मेदारी दे सकता है जब तुम अपने प्लेस के बारे में तुमको नहीं पता है। तो यहाँ से ये मेथड लगा सकते हो कि यार छोटे से बड़े की ओर चलो,
ठीक है, वेन डायग्राम, जैसे मान लिया कि पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता करो, उसके बाद फिर अपने मेन जो होता है स्टेट के बारे में पता करो, फिर पूरे कंट्री के बारे में पता करो, फिर होल वर्ल्ड के बारे में पता करो, ठीक है। सो मतलब सबसे ज्यादा नॉलेज आपको अपने नेटिव प्लेस के बारे में जरूर होना चाहिए, ठीक है, बेसिक नॉलेज कि कुछ भी पूछ दिया तो आपको मतलब आपके पास क्लियर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और पीआईक्यू में भी ये सब मेंशन करना होता है कि एवरेज पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या नहीं है। पीआईक्यू के ऊपर भी मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पीआईक्यू एक फॉर्म होता है जो सेकंड डे जब आप एसएसबी में स्क्रीनिंग हो जाते हैं ना, स्क्रीनिंग हो जाते हैं, तब उसके बाद ये भरा जाता है। और इसकी 2 कॉपीज दी जाती हैं, एक दी जाती है इंटरव्यूअर को और एक दी जाती है तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट को, ठीक है। सो डेफिनेटली प्लेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और जनरल अवेयरनेस में डिफेंस नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर्स होना चाहिए, जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स के लिए मैं बता सकता हूँ कुछ चैनल हैं जो आप लिख सकते हैं वाईटी पे। एक पहला तो है अमित सेन गुप्ता, ठीक है। आप मतलब यार ये सर्च कर लेना, है ना, अमित सेन गुप्ता, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश कंटेंट। वैसे भी आपको इंग्लिश कंटेंट फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है, इसमें प्रशांत धवन सर पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब आपका जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। और डेफिनेटली आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो उसको नोट्स बनाते चलते हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं उसको पलट के, ठीक है। और एसएसबी के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डेफिनेटली सेकंड पॉइंट इज दैट कम्युनिकेशन स्किल्स इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ पे जो प्रेफरेबल लैंग्वेज होती है, वहाँ पे इंटरव्यू में जरूर तुमसे कहेगा कि यार यू कैन यूज बोथ ऑफ द लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश बोथ, ठीक है। एंड मतलब कहीं फंबल हो तो हिंदी का यूज कर सकते हो, ये कहेगा। बट बेसिकली यार सब लोग इंग्लिश का यूज कर रहे हैं तो आपका प्रेफरेबल लैंग्वेज जो होता है वहाँ इंग्लिश ही होनी चाहिए। लोग कहते हैं हिंदी में बोल के सेलेक्ट हो सकते हैं, बट यार ऐसा है ही नहीं यार। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ, 3 इंटरव्यू दिए हुए हैं तो उसमें इंग्लिश का यूज होता है। आपकी ये कह सकते हैं बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इंग्लिश होती है और बोलने की होती है वो चल जाती है। कहीं पे आप फंबल हो रहे हैं तो हिंदी का यूज कर सकते हैं, बाकी ये रहता है ना। लेकिन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी होंगी उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। सो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक लेवल होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी वाली होनी चाहिए, लेकिन बेसिक लेवल होनी चाहिए, ठीक है। अब मेथड आता है कि इंप्रूव कैसे करें। मैंने खुद ही लिखा कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो इंप्रूव का बताऊंगा ही, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसमें आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ठीक है। आप मतलब यार ठीक है, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, लिसन कर सकते हैं और न्यूज़ सुन सकते हैं, और ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही सुन सकते हैं, मतलब सुनना है आपको जिससे आप इंप्रूव कर सकें। मूवीज़ हैं, ठीक है, वेब सीरीज़ हैं। और इस पे अगर डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी इंग्लिश को इंप्रूव कैसे करें, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल डेफिनेटली मेक श्योर टू मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। जेंटलमैन, फेज 3 इज फिजिकल फिटनेस। सो यू आर लाइक आप सोच रहे होंगे कि यार फिजिकल फिटनेस का क्या करना है यार इसमें। फेज 2 मतलब पीएफटी तो होता नहीं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, जैसे एयरफोर्स और अग्निवीर जो अब आते हैं, ठीक है, उसमें पीएफटी होता है, ठीक है। लेकिन एसएसबी इंटरव्यू में पीएफटी नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि फेज 2 में आपको पीएफटी देना होगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं है, फिर भी हमको फिजिकल फिटनेस क्यों इंप्रूव करनी चाहिए। सो जेंटलमैन, आपको पता होगा कि आप जीटीओ जो होते हैं ना, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो होता है, उसमें थर्ड डे और फोर्थ डे उसमें कई सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज के बेसिस पे होते हैं। इसमें आपका इंड्योरेंस, स्टेमिना, बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं। बेसिकली यार अगर मैं पूरे प्रोसेस को बताऊंगा ना, सो उस पर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो लाऊंगा कि यार जीटीओ क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है, सबके बारे में अलग अलग बताऊंगा। बट फिजिकल फिटनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ईयर, ठीक है। तो आपका फिजिकल ट्रेनिंग अपने आप को कैसे करनी है। और वैसे भी अगर आप आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में जा रहे हैं, फोर्स को चूज कर रहे हैं, तो यार फिजिकल फिटनेस आपकी ऑब्वियस सी बात है कि यार फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सो फिजिकल ट्रेनिंग में आप कैसे अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाएं, ठीक है। कई लोग तो पहले से ही रनिंग करते हैं, लेकिन रनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आप कुछ नहीं करते ना, कुछ भी नहीं करते, अगर आप इसकी प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो रनिंग आप केवल करेंगे तो आपका स्टेमिना जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। स्टेमिना इससे इंप्रूव होगा, ठीक है। और आप इसको एज अ हॉबी भी कर सकते हैं कि डेली 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना हो सके आपको रनिंग करनी है, ठीक है, डेली। और सेकंड थिंग, आप अपने आप को फिजिकल ट्रेनिंग में कैसे बिजी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, इससे भी आपको फिजिकल फिटनेस में हेल्प मिलेगी। सेकंड थिंग, रोप स्किपिंग होती है, ठीक है, रोप स्किपिंग होती है, उससे भी आपको फिजिकल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती है, ठीक है। बेसिक एक्सरसाइज में क्या बता रहा हूँ, जैसे उसमें बेसिक एक्सरसाइज में ये होती है, पुशअप होती है, पुलअप होती है, बीम होती है, स्क्वाट्स होते हैं, ठीक है। ये 4-5 बहुत ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज है, सब एक्सरसाइज है, डेली आपको करनी है। मोस्टली आप 30 मिनट या 1 आवर का वर्कआउट टाइम रखिए। उसके साथ साथ आप इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। फिजिकल के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड थिंग है आउटडोर एक्टिविटीज़, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, बेसिकली मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज़ में क्या होता है, स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स, इसमें लोग केवल क्रिकेट को जानते हैं स्पोर्ट्स मोस्टली, ठीक है। तो क्रिकेट तो खेलते हैं, साथ में स्पोर्ट्स जैसे बहुत ही ज़्यादा एजिलिटी जो बढ़ाते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल हो गया,
बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है। इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एजाइल बनाता है आपको, अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में मदद करता है। सेकंड थिंग, टीम गेम होता है उसमें। अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, उसमें जो आपके प्लेयर होते हैं ना, उनके साथ टीम के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट टीम स्पिरिट जो होती है ना, टीम का मतलब बेसिकली जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, ये सब OLQs में है। तो आप अगर ऐसा कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज या OLQs डेवलप हो जाती हैं। और PIQ में आप डेफिनेट सी बात है कि आप मेंशन करेंगे ही करेंगे ये सब चीजें, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको आउटडोर एक्टिविटीज में अपना टाइम देना है, चाहे 30 मिनट दें या 1 आवर दें, आप दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, ठीक है। अब मैं साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन यहाँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर SSB इंटरव्यू। अगर आप सेकंड डे के बारे में जानते होंगे तो आपको पक्का पता होगा साइकोलॉजी टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बारे में सबसे पहले ये होता है सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करें, ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये कैसे इंप्रूव होगी, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर, DNP, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंप्रूव होती है। आप जानते हैं कि सोशल इश्यूज क्या चल रहे हैं, क्या चीजें ऐसी हो रही हैं जो इंप्रूव हो रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या चल रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर स्टोरी बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब सेल्फ डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, ठीक है। जो साइकोलॉजी होती है ना आपकी, बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। आप 17-18 साल के बच्चे हैं, उसमें आपकी क्या साइकोलॉजी है, आपने दुनिया देखी नहीं है, लेकिन आप न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो आप दुनिया को देखने का मतलब एक आपका ओवरव्यू बन जाता है। आप मतलब बेसिक से यार 18 ईयर्स या 17 ईयर्स के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका अपना माइंडसेट बनता है, ओवरव्यू बनता है, आपके अपने ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। सो ओपिनियन डेवलपमेंट जो होता है वो साइकोलॉजी टेस्ट में आपका देखा जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग, साइक टेस्ट, ठीक है। साइक टेस्ट मैंने यहाँ साइकोलॉजी प्रिपरेशन में ये तो मोस्ट होता ही है, इसमें WAT होते हैं और TATs होते हैं, ठीक है, और SRTs होते हैं, और फोर्थ टेस्ट होते हैं STT। ये 2 घंटे का टेस्ट होता है, मतलब एक तरह से सबके लिए अलग अलग टाइम होता है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। बेसिकली TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, STT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, ठीक है। इन सब टेस्ट में मतलब बेसिकली आपका साइक जो होता है ना, आपकी माइंड की स्टेबिलिटी चेक करते हैं बहुत सारे टेस्ट के माध्यम से। किसी में मतलब TAT का कहते हैं तो पिक्चर दिखाते हैं उसमें 12, ठीक है। SRT का कहते हैं तो उसमें बेसिकली कई सारी प्रॉब्लम्स दी होती हैं, सिचुएशन दी होती है जिसके बारे में आपको रिएक्शन लिखना होता है। WAT वैसा होता है कि वर्ड दिया होता है, उसमें 15 सेकंड में आपको एक सेंटेंस बनाना होता है जो कि लॉजिकल हो। और सेकंड थिंग, उसमें मतलब आपका ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्स हो, ठीक है, मतलब सेल्फ से ओरिएंटेड ना हो। इसके बारे में मतलब ये थोड़ा वास्ट है, तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो बेसिकली ला दूंगा, ठीक है। सो साइक टेस्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। सेकंड थिंग, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस मैं पूरा बता रहा हूँ ना, तो आपको ये सब चीजें बहुत सारी टर्म्स नई लग सकती हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। फेज 5 आपका है इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू जो होता है ना, वो बेसिकली एक पार्ट होता है। अगर आप SSB को तोड़ेंगे तो बेसिकली 3 पार्ट में टूटेगा। पहला होता है पहला होगा तुम्हारा उसका क्या नाम है, GTO, ठीक है। अब मतलब इसको सीक्वेंस अल्टरनेट हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू, INT इंटरव्यू, और तीसरा होता है साइक, ESYCH, ठीक है, साइक। तो ये 3 चीजें ही टेस्ट होती हैं आपकी टोटल 5 दिन का प्रोसेस में। ये 3 चीजें टेस्ट होती हैं, 3 ऑफिसर होते हैं इसके लिए, ठीक है, अलग अलग। GTO के लिए ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और साइक के लिए साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये 3 ऑफिसर होते हैं जो आपका 50 OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक करते हैं इन सब टेस्ट के माध्यम से। और जो मैंने अभी सब सारी चीजें बताई ना, फिजिकल फिटनेस, ठीक है, और फिजिकल ट्रेनिंग, आउटडोर एक्टिविटीज, साइकोलॉजी की प्रिपरेशन, ठीक है, और मतलब स्पोर्ट्स गेम, ये जो बता रहा हूँ है ना, वो सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं OLQ डेवलप करने में हेल्प करती हैं। अगर आप OLQ को मैं बताऊंगा ना, जब डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो सब चीजें पहले मैं बता रहा था वो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं साइकोलॉजी। और इंटरव्यू प्रिपरेशन में फिर से आ जाते हैं, तो उसमें मॉक इंटरव्यू आपको देने हैं, ठीक है। मॉक इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आप किसी बच्चे से किसी दूसरे लड़के से फैमिलियर हैं जो कॉन्फ्रेंस आउट है, या फिर आप इसमें बेसिकली गाइडेंस ले सकते हैं, किसी भी मतलब रिटायर्ड ऑफिसर की गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। और कोई इंस्टीट्यूट में आप दे सकते हैं, ठीक है। कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। तो मतलब ये हो जाता है ना, जेन्युइन बच्चा होता है, जेन्युइन आदमी होता है ना, उसी से गाइडेंस लें। ऐसा नहीं कोई फेक हो, किसी ने कभी खुद इंटरव्यू दिया नहीं है और वो आपका मॉक इंटरव्यू ले रहा है, तो बेसिकली यार गंदे मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वैसा इंटरव्यू होता नहीं है। इसका जो होता है ना, वो एक सिंपल मतलब एक ओरिएंटेड चीज में होता है कि यार डिफेंस की चीजों में पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा, आपका ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो अपने सेल्फ के बारे में होता है ना, सेल्फ असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरव्यू के लिए। अपने बारे में आपको पता है, इंट्रोस्पेक्शन अच्छा है, तो इंटरव्यू आपका बेसिकली अच्छा जाएगा। सेकंड थिंग, BL जो मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज। अब ये क्यों वो करती है, हेल्प करती है, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको। अगर आप कैसे इंटरव्यू ऑफिसर के सामने कैसे देख रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, ठीक है,
कहीं आप नर्वस तो नहीं हो, ठीक है। तो आप नर्वस होते हैं तो कई सारी आपकी बॉडी साइन प्रोड्यूस करती है बहुत सारी कि यार आप नर्वस दिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको नर्वस नहीं रहना है। इसके लिए आप जितना प्रिपरेशन करेंगे, जितना मॉक इंटरव्यू देंगे, जितना मिरर प्रैक्टिस करेंगे, जितना ओपन अप होंगे लोगों के साथ, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प। 6 इज बेसिकली ग्रुप टेस्टिंग। Here the group testing is being conducted in the SSB usually on the day 3 and day 4। यूजुअली क्या मतलब तीसरे दिन और चौथे दिन ही ग्रुप टेस्टिंग होती है। बेसिकली इसको कहते हैं GTO यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे आपको आपके टोटल 9 टेस्ट होते हैं, कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे लेक्चर होता है, आपकी GD होती है, GP होती है। GP मीन्स ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है। और उसके बाद होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं, ठीक है। इनका मतलब कि PGT होती है, FGT होती है, HGT होती है, ठीक है। इनके जो वो होते हैं ना मतलब कि ये कब होगा, ठीक है, कि जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कब होगा, लेक्चर कब होगा, तो वो अल्टरनेट हो सकते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग कि यार किसी का डे 3 हो रहा है, किसी का डे 4 हो रहा है, ठीक है। सो वो कोई फिक्स नहीं होता। कोई अगर लड़का कहता है कि फिक्स है कि डे 3 में यही चीज होती है, डे 4 में, तो वो गलत कह रहा है। बेसिकली ये अल्टरनेट में हो सकते हैं। और GTO के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं ला सकता हूँ कि यार 9 टास्क कैसे होते हैं, उनको कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे ग्रुप टेस्टिंग में बेसिकली मैंने लिख रखा है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि हाउ टू प्रिपेयर। पूरा भी आज का सेशन ही इस पे है कि प्रिपरेशन कैसे करें। सो हाउ टू प्रिपेयर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में आपको बेसिकली लोगों के बीच में बैठना होता है, ठीक है। उसमें ग्रुप के बीच में आपको बैठना होता है। तो वहाँ ग्रुप में एड्रेस करने में, ठीक है, लोगों को कई ऐसा होता है कि शाइनेस होती है, ठीक है। कई लोगों को हेजिटेशन होती है कि ग्रुप में बोलेंगे कैसे। तो आपको शाइनेस और हेजिटेशन हटानी है। आपको बेसिकली कई सारी मॉक डिबेट करनी है, ठीक है। कई सारे ग्रुप डिस्कशन मॉक करने हैं, ठीक है। मॉक ग्रुप डिस्कशन, मॉक GDs, ठीक है। GDs होती हैं। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ या ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ आप GD करिए, ठीक है, या डिबेट करिए। डिबेट सबसे अच्छा पार्ट होता है यार। डिबेट में जो होता है ना, आदमी अपनी भड़ास निकालता है यार। ये कहते हैं कि यार आपके टॉपिक अगेंस्ट होते हैं ना, तो आप सच में बोलते हैं कि यार ये बोल रहा है, मुझे इसको काउंटर करना है। लेकिन GD में होता है काउंटर नहीं करना होता है। तो डिबेट से आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा जो इंप्रूव होती है वो डिबेट से होती है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो डिबेट उसमें है ही नहीं यार, SSB में तो मैं डिबेट क्यों प्रिपेयर करूँ। बट डिबेट अगर आप करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है, ठीक है। सेकंड थिंग ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज में मैंने पहले ही बताया था स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स होता है ना, वो ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है। आप अगर अपने स्कूल में है या स्कूल में ड्रामा कहीं परफॉर्म हो रहा है तो आप ड्रामा में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी में ये भी आता है, ठीक है। जितना आप ग्रुप में मिलजुल के कोऑपरेशन करेंगे ना, तो आपको SSB में अगर वो पार्ट नहीं भी है, ठीक है, तब भी वो आपको मतलब यूजफुल होगा। क्योंकि आपको SSB में कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी दिखानी होती है कि ग्रुप को कैसे लीड कर रहे हैं आप, ग्रुप में कोऑपरेशन कैसे डाल रहे हैं। तो आप अगर ड्रामा, ये ग्रुप में ड्रामा तो करके दिखाना नहीं है, SSB में होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है ना, ग्रुप में आपका इन्फ्लुएंस कैसा है। तो पावर टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ठीक है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ये एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, ठीक है। तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ वो अगर आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली इंप्रूव होगा। स्टोरी टेलिंग, अब यहाँ पे स्टोरी टेलिंग का क्या काम आ गया। स्टोरी टेलिंग से जो आपकी होती है ना साइनेस, जो होती है ना साइनेस, ठीक है, इससे ओवरकम करने में सबसे ज्यादा हेल्प स्टोरी टेलिंग से मिलती है। अगर आप किसी को स्टोरी सुना रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो कोई भी आपकी पास्ट स्टोरी आप सामने मिरर के सामने खड़े होइए, आप सुनाइए, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है लेक्चरेट में, ठीक है। लेक्चरेट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं शुरू में तो आप स्टोरी टेलिंग चालू करिए। डेफिनेटली आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, वे ऑफ मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, और थॉट प्रोसेस है, ठीक है, और मीन्स जो आपका बोलने से पहले सोचना होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है, इससे स्टोरी टेलिंग से, ठीक है। तो लेक्चरेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से मतलब लेक्चरेट आपका आगे इंप्रूव होगा, ठीक है। लेक्चरेट आपका इसी से इंप्रूव होगा, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग करिए और लेक्चरर के टॉपिक उठा के भी आप सामने डिस्कस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं 3 मिनट खड़े होके, ठीक है। और सेकंड थिंग स्पीचेस, तो मैं भूल ही गया, ठीक है। स्पीच जो है ना, स्पीच से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में ये होता है कि SSB जो होता है ना, वो आपका टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। SSB इज नॉट द एकेडमिक टेस्ट, SSB इज नॉट ओनली फॉर योर एकेडमिक प्रिपरेशन, ठीक है। आपकी एकेडमिक प्रिपरेशन आप भले ही 99% तेज ला रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, आप साइनेस हो जाते हैं, आप साई हो जाते हैं लोगों के सामने, ठीक है, आपकी वॉइस हेजिटेट करती है, ठीक है, आपका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये सब चीजें इंप्रूव आपको करनी पड़ेंगी SSB के लिए। सो डेफिनेटली SSB इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ओवरऑल पर्सनैलिटी अपनी इन सब चीज़ों के माध्यम से आप अगर डेवलपमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंप्रूव होगा। और जितनी भी चीज़ें इसमें बताई हैं, ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी मच हेल्पफुल। आपको न्यूज़पेपर, इसकी जस्ट जो है ना समरी है, वो आपको न्यूज़पेपर चालू करना चाहिए, ठीक है। आपको बेसिकली जर्नल राइटिंग चालू करना चाहिए, कुछ अच्छी हॉबीज डेवलप कीजिए, बुक्स पढ़ना चालू करिए, जिससे आपको जो होता है ना थॉट प्रोसेसिंग होगा, आपके ओपिनियन खुद के बनेंगे और बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगे, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने यहाँ लिख रखा है स्क्रीनिंग डे 1, क्योंकि मैं यहाँ पे SSB प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूँ कि प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। मैं ये नहीं बताता प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में मैंने बताया सब चीजें, प्रोसेस बताया, ठीक है। लेकिन यार वीडियो डेफिनेटली बड़ा हो रहा है, तो मैं बताता हूँ कि स्क्रीनिंग जो होता है वो डे 1 पे होता है। और इसमें जो बच्चे मतलब इन हो जाते हैं, इसी को स्टेज 1 कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीजें होती हैं, OIR और PPDT, ठीक है। स्टेज 1 इसमें जो बच्चे इन हो जाते हैं, स्क्रीन इन हो जाते हैं, वो आगे स्टेज 2 के लिए जाते हैं, ठीक है। के पीछे क्या? अब स्टेज 2 में मीन्स 5 दिन तक रुकेंगे और 5वें दिन जो होती है वो कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है।
तो वहाँ पे आपकी कंबाइंड परफॉर्मेंस के आधार पे तीनों जो ऑफिसर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यू ऑफिसर, डिस्कस करते हैं कि यार आपको आगे प्रमोट करना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। बेसिकली जो स्टेज 2 में भी मतलब पास होते हैं उनको रिकमेंडेड कैंडिडेट्स कहा जाता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन अगर उनका हो जाता है और मेडिकली फिट होते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाते हैं। बाद में मेरिट का भी इशू होता है कि मेरिट अगर मेरिट हुआ है तो डेफिनेटली वो एकेडमी जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो मैंने जो चीज़ें बताई आपको ध्यान में रखना है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर आपको नहीं समझ में आया तो वो टॉपिक आप कमेंट में मेंशन करिए कि यार भैया इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ला दीजिए ना, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। थैंक यू, जय। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए।